لدى اكسبرس channel yandan gama rasul bin Muhammad Musa lecturer forum kargili choxna during TFC kargil book launching ceremony malakyosin the program penu fesperon pu lada khrawa religious council kargil go ba Dr. Jafar Khon yutpin yantir tasmim nazarna kargili English senior lecturer Achu Hasan Khan is second edition simplified English grammar fingsin dibatsak snalla goma edition pu longistung nishu saganok bi masomin Dianuk Selkani from Lachin Samo Base English grammar Chuchupi Fralux Basetin. Achu Hasan Khan, Senior Lecturer English. This event not only celebrates the power of the written words but also underscores the role of the education in shaping minds and communities. I, Sajjad Ali, Vice President of the KRF, extend my heartfelt welcome to our Chief Guest Dr. Muhammad Jafar Akhund Sahab, the Honorable Chairman of the LHTC Kargil, who graciously spared time out of his busy schedule and graced the occasion with his magnanimous presence. Please join me in welcoming Shri Achu Hasan Khan Ahil to share a few words about his journey and the inspiration behind this book. A big round of applause, everyone, please. I would like to convey my heartfelt gratitude to honorable guests, honorable Chief Executive Councillor and other distinguished guests for releasing the book, namely Simplified English Grammar, written and compiled by myself. In fact, sir, the first edition of this book was published in the year 2015. And that time, I got an overwhelming response from the readers as well as students, because that time the 500 copies of the books were sold just within 1 or 2 months. And after that, my readers, my students, my distributors have been pressing me hard to bring out the second edition of the book. But due to some inevitable circumstances, I couldn't bring out the second edition of the book well in time. It took a pretty long time. So after a period of I think 8-9 years, the second edition of the book is here. So I am sure the learners of English language will be benefited by this book, because this book is the product of my long research. As when I became a lecturer in the year 2008 after qualifying JKPSC, and when I started teaching the students of 11th and 12th standards, I got to know the problems of the students being faced by them while learning this most important language. कि बहुत ही फ्रूटफुल है एक सरसरी नजर डाली इंशाल्लाह बच्चों को आने वाले फ्यूचर में काफ़ी मददगार साबित होगा। एक टीचर का काम ही एक स्टूडेंट का काम होता है, जुस्तजू तलाश जारी रखना होता है। उन्होंने ये जुस्तजू और तलाश जारी रखी है, जिसके लिए मुबारकबादी का मुस्ताक है। दीगर एक चाइनीज प्रोवर्ब है, इफ यू प्लान फॉर ए ईयर प्लान राइस। अगर आप एक साल के लिए प्लान करते हो तो मकई या चावल उगाओ। इफ यू प्लान फॉर ए डिकेड, अगर आप 10 साल के लिए कोई प्लान करते हो तो प्लांट ट्रीज उगाओ। बट इफ यू प्लान फॉर ए सेंचुरी, अगर एक सदी का प्लान अगर आप रख के चलते हो, लेके चलते हो, तो प्लान में एक इंसान होगा। तो ये का जो हसन खान साहब का जो जुस्तजू है वो प्लान मैन की तरह है, एक इंसान को उगाने जा रहा है, तो उसी का एक हिस्सा है। उस हिस्से में कामयाब हुआ, मुबारकबादी के मुस्ताक है। और हम फ्यूचर में चाहते हैं कि इसी सिलसिले को, इसी कावाइश को, इसी जुस्तजू को जारी रखे। निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जान पुरसोस, यही है रफ्त सफर मीर कारवां के लिए शुक्रिया। ताकि जितना ज्यादा हमारे लोकल इश्यूज को, लोकल प्रॉब्लम्स को, जितना हमारे टीचर्स लेक्चरर्स जो यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं वो जानते हैं, वो बाहर के लोग उतना नहीं जानते, तो वो सारी चीजों को कैटर करते हुए ये बुक पब्लिश करना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बाकी जितने भी लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, जो अपने फील्ड में माहिर है, वो भी आगे आएंगे, इन चीजों के ऊपर काम करेंगे और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इन चीजों से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जितना ज्यादा हम एक ग्राउंड रियलिटीज हम देख सकते हैं, जितने भी चाहे टीचर हो चाहे लेक्चरर्स हो,
हम बच्चों का हमें पता है, उनके लेवल पता है, वो उनके क्या लेवल है, उस हिसाब से वो सारा कुछ देखते हुए जब हम बुक निकालेंगे या बुक पब्लिश करेंगे तो हम वो सारी चीजें ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पहले मैं तहे दिल से एजुकेटर एसोसिएशन की तरफ से हमारे आज के काजू साहब को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। ताकि मेंस कम्स एंड गो एंड बुक्स लीव फॉर एजेस, इंसान आते जाते हैं लेकिन किताब जो है वो सालों साल जिंदा रहता है, सदियों तक जिंदा रहता है। यानी कि उस शख्स की एक लेगेसी बन जाती है किताब कि वो हमेशा लोग उसको पढ़ते हैं, उससे इस्तेफादा लेते हैं, तो ये उसकी एक लेगेसी बनती है जो इंसान दुनिया में छोड़ के जाते हैं। तो खुशनसीब है काजू साहब को ये शर्फ हासिल हुआ कि इस किताब को उन्होंने एक शर्मिंदे काबिल बना के आज इसको पब्लिश करके आज इसका फॉर्मल यानी कि लॉन्च हुआ। तो मैं आपको बहुत ही दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक काजू साहब का सवाल और मेरे साथ ताल्लुक है, हम काफी छोटे अरसे से साथ पढ़े लिखे हैं। वी वर वेरी फास्ट एंड गुड फ्रेंड्स। मुझे याद है जब इन 1988-89 JNV करगिल में जब फर्स्ट JNV करगिल में जब फाउंडेशन शुरू डाला था, एंड तब वी वर द फाउंडर पेज ऑफ JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। जब बरू में हमारा JNV था DC ऑफिस के पास, तो काजू साहब और मैं दोनों हम साथ एडमिशन लिए थे। तब फाउंडर करगिल का JNV का फाउंडर पेज था, तो तब से लेके 12th तक हमने साथ पढ़ा। एंड देन वी वेंट टू श्रीनगर फॉर हायर एजुकेशन। फिर हम MBBS या मेडिकल टेस्ट के लिए हम कोचिंग कर रहे थे। एंड देन काजू साहब के जैसे ज्यादा रुझान वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स एंड ऑल, तो उनकी रुझान थी, तो ही वेंट टू दिल्ली एंड जॉइन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी टू अचीव MA ऑनर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, काजू साहब ने पहला एडिशन इस किताब का शाया किया और उसको हाथों हाथ लोगों ने लिया, और अब दूसरा एडिशन उन्होंने शायद 10th and 12th क्लासेस के लिए मुरतब किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे सोसाइटी, न सिर्फ सोसाइटी बल्कि जो स्टूडेंट फैटर्निटी है उसको बहुत फायदा पहुंचेगा। और हम उमर साहब से भी जिक्र किया, आजकल गोल्डी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा एक मामला है, सरगर्म है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, हर एक मैदान में आप देख रहे हैं। तो जरूरी है कि मैं डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस लैंग्वेज को राइज कराने में, स्कूलों में राइज कराने में और इसका निसाब को स्कूलों में लाने के लिए LHDC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी उसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं और हमारे इस लैंग्वेज को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि इस देश के लोग तो आप ठीक ठाक बोल सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उससे नीचे के लोग जो मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं ये लैंग्वेज। एक शकर सिकटन में एक बेचारा अनपढ़ आदमी ने मेरी आंखें खोल दी। वो एक PhD स्कॉलर नहीं कर सकता जिसने मेरी आंखें जिस तरह उन्होंने खोली। वो मुझे बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा बच्चे क्या करें, छोटे पोते क्या करें, कहते नो खेल में buton işletmana orta zırsa şeker tutuyor. O kota zedin bu dera. Orta zırsa şeker zedni sum son sena bu salta son. Son sen loksiyondu bu tadı bana bu sadı. O bu saç çinu prodiji bu bana maddi selamına bu amin. चलो ये हालत है हमारी। आज हम दुनिया के बाकी लैंग्वेजेस के सीखने के तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है, लेकिन अपने रूट से हम अलग होने में हमें खुशी हासिल होती है। मीठा उर्दू मेरे मिगोल, मीठा इंग्लिश मेरे मिगोल, मीठा मध्य मेरे मियो मध्य शो मध्य प्राउड फीलिंग है मुझे, हमें प्राउड फील होता है इस तरह से बातें करने में। लेकिन इससे आप रूटलेस हो रहे हैं, हमारे रूट से हम बिछड़ रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए मैं आज के इस मंच का मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेहरबानी करके पहले अपने बच्चों को 5वीं 6वीं 7वीं तक
अपने ही लैंग्वेज में बातें करने की कोशिश करें। घर में घर का माहौल भी बनाएं कि पहले उनको अपना लैंग्वेज पूरी तरह से उनको सीख जाए, उसके बाद आप कोई भी आप लैंग्वेज सीखना चाहें, या इंग्लिश या उर्दू या जो भी आप, ये तो आपकी ज़रूरत है क्योंकि आपको रोजगार की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अपनाना है। हमारे इंग्लिश के सीनियर लेक्चरर हैं, दिल्ली से शिकायत करता है, I wish him hearty congratulations on behalf of Education Department and all the fraternity of Education Department for releasing this beautiful, wonderful English book of English grammar for the benefit of students, and I hope this will definitely pave a way and inspire many others to release similar kind of books in future. This would definitely generate a beautiful academic atmosphere in the district Kargil and among the lecturers and teaching fraternity. I wish him on behalf of School Education Department very successful future ahead, and hope he will bring more and more such books ahead. Thank you so much. यहाँ पे जो अभी काटो हसन जी ने जो बुक निकाला है बहुत अच्छा है, उनके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी सर, ये बोलना चाहूँगी कि अभी जो एक CBSE का एक टीम आया था, आपके नज़र में ये लाना चाहती हूँ सर। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे CBSE का एक टीम आया हुआ था जुलाई अगस्त में शायद, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ की, बहुत ज़्यादा। ये बात शायद आप सबों को पता नहीं है, मैंने डायरेक्टर साहब से भी कहा था कि सर हमारे लेक्चरर साहबान, हमारे मास्टर्स टीचर्स जितने भी हैं, उनमें से जो उस दिन जो ट्रेनिंग जिन्होंने लिया था, तो उनका एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार आके मेरे सामने ये बोला कि इतने अच्छे लेक्चरर साहबान हैं आपके, इतने नॉलेज वाले हैं कि पूरे ऑल इंडिया में इनको RP के लिए ले जाया जाना चाहिए, हम ये डिमांड रखते हैं। तो सर मैंने ये तो डायरेक्टर साहब से कहा था। क्यों मैं ये बात इसलिए यहाँ कह रही हूँ, क्योंकि हमारा जो एकेडमिक साइड है सर वो बहुत पुअर आ रहा है। तो उन्होंने बोला पुअर क्यों है, नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे लेक्चरर साहबा, मास्टर साहबा इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने अच्छे हैं कि इनको हम नेक्स्ट उसमें हम ऑल इंडिया RP के लिए बुलाएंगे, रिसोर्स पर्सन के लिए सर। तो ये चीज़ें जो है, अभी जो बेसिक एजुकेशन है सर, हम लोग मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो नेचुरली अभी एकदम से रिजल्ट तो आएगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये रिजल्ट अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। मैम सीधा का बात सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कुछ फॉर्म पे ये सुना कि हमारे लेक्चरर्स हो, टीचर्स हो, मास्टर हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वाकई में ये बहुत खुशी की बात है, और इस बात का हम भी एहसास करते हैं। मगर कभी कभी हमारे लिमिटेशंस भी होते हैं, तो आप लोगों को ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा। देखिए मुझे काजू हसन खान, इनको मैं बायफेस जानता था, मगर वो इनका सुना था कि ये मतलब इनका सोच है, वो ये आथर और बाकी इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं यहाँ पे छानेगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल में गया था, तो वहाँ पे ग्रामर बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे थे। एज एक्सपर्ट हमारे काजू हसन खान साहब को लाया था वहाँ पे, सीनियर लेक्चरर। तो बच्चों का वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो हमारे ये लैंग्वेज को, जैसे हमारे काजू गुलजार साहब फरमा रहे थे, लैंग्वेज का मेरा ये और हमारे कौंसिल का भी ये सोच है कि लैंग्वेज को एक रिलीजन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जो आजकल में थोड़ा हो रहा है। जैसे
हमारे कहते हैं बौद्धिक वो करके हमने कुछ 3 तारीख को मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमें प्रेजेंटेशन दिया था कि हमारे यूटी गवर्नमेंट ने, उसमें हमने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया भी था। ये लैंग्वेज पूरे लद्दाखों का है, एक लद्दाखी लैंग्वेज करके नाम थोड़ा सा एक रिलीजन का वो लुक नहीं देना चाहिए। मगर मेरे हिसाब से ये बौद्धिक के बजाय अगर हम लद्दाखी, जो इन्होंने हमारे शख्सो साहब ने बताया है, मैं उनकी बात से मुतफिक करता हूँ, क्योंकि एक ब्रॉड वो आ जाता है, उसमें सब अकोमोडेट हो जाता है। और जहाँ तक आप लैंग्वेज का है, हम किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं है। एक जो हमारा विंटर क्लासेस चला रहे हैं और हम चला रहे थे, उसमें रेमेडियल क्लासेस जिसको हम बोलते हैं, सच हमारा रेमेडियल क्लास चलाने का या किसी को तंग करने का बिल्कुल मकसद नहीं है। हमारा ये मकसद है क्योंकि बच्चे डायरेक्ट हमारे बोर्ड के बोर्ड से निकल के सीबीएसई में गया है, तो 1-2 साल बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप जानते हैं पिछले साल आपने देखा हमारे बच्चे वो ग्रीन जोन में तो बिल्कुल थे नहीं, 5-10% ही थे, बाकी या रेड जोन या येलो जोन में थे। तो उसी को हमने सोचा बाद में बच्चे मैट्रिक में ही रह जाएंगे और हमारा ड्रॉप आउट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी को कम करने के लिए कि सिस्टम बनाने की कोशिश किया था हमने, और वहीं पे अभी तक वो चल रहा है। मगर ये रिसेंटली हमारा बहुत सारे जगहों पे कुछ इश्यूज आ गए, कुछ नतीजे ये तो वाकई में कुछ प्रॉब्लम है, मगर कहीं तक उसको उस सिस्टम को सबोटाज करने के लिए कुछ ऐसे उपसार है, तो हमको तह में पहुंच के देखना चाहिए कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। बाकी जहाँ तक विंटर क्लास चलाने का सवाल है, जैसे लीगल इशू उठाए हैं, हाँ वाकई में लीगल इश्यूज है कुछ उसमें, तो उस पर हम एक काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को हम उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम एक वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला लीगल इश्यूज भी एड्रेस हो जाए और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है उस पर भी हम कंप्रोमाइज नहीं करें। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो एक्चुअली ये जो बुक मैंने लिखा था, जैसे इसका फर्स्ट एडिशन जो 2015 में पब्लिश हुआ था, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये दे आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि वो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो इसलिए कंसिक्वेंटली व्हाट हैपन्स, जब वो 9, 10, 11, 12 के स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, तो दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो माई मोटिव वॉज टू हेल्प देम, टू असिस्ट देम, तो उनको थोड़ा मदद करना था, इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में लाया। वैसे देयर आर नो डर्थ ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, वैसे हज़ारों बुक्स है मार्केट में, तो मैंने ख़ासकर हमारे करगिल के स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रख के उनके लिए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ग्रामर मैंने लाया। तो जैसे 2015 का जो मेरा फर्स्ट एडिशन था, तो दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग रिसर्च। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, पहले ग्रामेटिकल रूल्स को खुद समझने की कोशिश किया। आफ्टर दैट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल दोज रूल्स, तो उनको मैंने सिंप्लीफाई किया। तो ख़ासकर ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स को मैंने सिंप्लीफाई किया है जो बेसिक है, जैसे ख़ासकर जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे यूनिट्स ऑफ इंग्लिश हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, तो रिलेटिव क्लास, कंडीशनल क्लास वगैरह है। तो इन जो ख़ासकर ये मैक्सिमम जो है इनकी बहुत ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए, स्पीक करने के लिए। दीज पार्ट्स ऑफ ग्रामर आर रिक्वायर्ड टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली और राइट इंग्लिश करेक्टली। तो उन्हीं एरियाज़ को मैंने टच किया है। अब इस सेकंड एडिशन की अगर मैं बात करूं, तो इस पे भी मैंने 2015 के बाद काम करना शुरू किया था, फर्स्ट एडिशन लॉन्च होने के बाद। तो इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा एडिशन किया है, जैसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इनको समझने में। तो उसके अलावा थोड़ा टेंसेस को और इलाबोरेट किया है। तो कंडीशनल क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और फोनेटिक्स जो हैं, इनको मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट किया है इस सेकेंड एडिशन में, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आवर एजुकेशन सिस्टम। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में वेल वर्स्ड होना बहुत ही ज़रूरी है आगे एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, आगे प्रॉपर एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो
इसीलिए मैंने सिंप्लीफाइड इंग्लिश ग्रामर को लॉन्च किया है। सर ज़्यादातर जो बिगिनर के टाइम पे स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश के जो साउंड्स हैं मुख्तलिफ अल्फाबेट्स के, जी उसको समझने में थोड़ा सा इशू होता है। एग्जैक्टली उस वजह सर। से जो जैसे आपका वोवल और कॉन्सोनेंट हैं, जी, उसमें exactly. अल्फाबेट भी होता है, साउंड भी होता है। तो Exactly. इसको स्टूडेंट्स तक अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए क्या कुछ किया आपने? तो इसमें मैंने एक फोनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि खासकर जो प्रोनाउंसिएशन को लेकर, खासकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली मैक्सिमम वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो उनको प्रोनाउंसिएशन से अवेयर कराने के लिए मैंने फोनेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस बुक में मैंने लास्ट चैप्टर के रूप में मैंने दिया है। तो इसमें मैंने बच्चों को ये समझाने की कोशिश किया है, वैसे देयर आर ओनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश, लेकिन इफ़ वी ऑब्जर्व दोस 26 लेटर्स प्रॉपरली, देन दीज 26 लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। तो उन 44 साउंड्स को सिंबलाइज करने के लिए एक IPA है, इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन, उन्होंने एक सिंबल बनाया है हर साउंड के लिए। तो उन सिंबल्स का एक चार्ट भी मैंने इस बुक में दिया है। तो उसके अलावा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि फोनेटिक्स होता क्या है, किस तरह से आप अपने प्रोनाउंसिएशन को आप प्रॉपरली आप करेक्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश वर्ड्स को कैसे प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये बच्चों को अवेयर कराने के लिए मैंने फोनेटिक्स भी इसमें जोड़ दिया है इस बुक में। हमारे यंग ऑथर काचू हसन खान साहब का उनको इस बुक लॉन्चिंग पे इनके बुक जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ग्रामर जो है उसको लॉन्च करने पे, और उनके उसके लिए इनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, मेरे पर्सनली भी और हमारे पूरे हिल काउंसिल की तरफ से। ये बहुत अच्छी बात है, सच पूछ हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कोई अपने यहाँ से करगिल से कोई, चाहे आथर की शक्ल में हो, चाहे स्पोर्ट्समैन की शक्ल में हो, चाहे किसी में अगर एक्सेल करते हैं ना, ये हमारे लिए रियल में एक अचीवमेंट होता है। तो उस सिलसिले में जो आज उन्होंने यहाँ एक प्रोग्राम रखा, उसमें हमने देखा हमारे पूरे लेक्चरर फॉर्म, उनका भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने एक रिकमेंडेशन देने के लिए पूरा सब यहाँ पे काचू हसन खान के बुक को ये करने के लिए, लॉन्च करने के लिए यहाँ पे सब जमा हो गए। और मुझे यहाँ ये जानकर बहुत और ज़्यादा खुशी हुआ कि इनका ये बुक जो है सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन 2015 में इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये हमारे बच्चों के लिए, ख़ासकर अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए, क्योंकि आज इंग्लिश जो है आपको मालूम है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और नीड ऑफ डे हमारे बच्चों के लिए, सब के लिए। तो ये जो और इंग्लिश ग्रामर को जो ये सिंप्लीफाइड करके इन्होंने पेश करने की कोशिश किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और हिल काउंसिल हमेशा ऐसे चीज़ों के लिए न सिर्फ इनकरेज करेगा, बल्कि जहाँ भी हमसे मुमकिन हो सके उनको मदद करने की कोशिश करेगा। तो और कोई भी फील्ड हो, खासकर एजुकेशन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ऐसे एजुकेशन के उसमें जो भी ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाले चीज़ें हों, इंशाल्लाह हिल काउंसिल हमेशा उस पर काम करे।